Hello friends, I am Chintan Joshi from Nalanda Vidyalay, Virpur Morbi, and in the subject Business Studies in class 12th Commerce, today we are going to discuss about the topic from chapter number 1, that is nature and significance of management, and our topic is coordination. Guys, we have physically discussed the different topics from this chapter in our physical class meetings, right? And the last topic of the coordination was pending due to COVID-19, and we could not discuss it physically, right, in the real classroom setup. So today we are going to discuss the undiscussed topic, that is the coordination, in this video lecture. So let me start about coordination. First of all, meaning of coordination or concept of the coordination. In the order to achieve organizational objectives efficiently and effectively, the managers have to give a common direction to group efforts and the working of different departments. देखो, ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स है उनको एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव करने के लिए मैनेजर को क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट ग्रुप को कॉमन डायरेक्शन में लाना पड़ेगा, राइट? द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर इंटीग्रेट देयर एक्टिविटीज इज नॉन एज कोऑर्डिनेशन. तो अभी क्या हुआ कि इनको कॉमन डायरेक्शन में लाने के लिए या तो ये सभी डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट ग्रुप को इंटीग्रेट करने के लिए जो एक्टिविटी मैनेजर परफॉर्म करता है उनको कोऑर्डिनेशन कहा जाता है. आगे देखते हैं. कोऑर्डिनेशन इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू मेंटेन हार्मनी अमंग इंडिविजुअल्स एफर्ट्स towards the accomplishment of common goals of an organization. कोऑर्डिनेशन क्या होगा? वो एक ऐसा ऑर्डरली अरेंजमेंट है जहां पर इंडिविजुअल एफर्ट्स को ग्रुप एफर्ट्स में हार्मनी के साथ मेंटेन किया जाएगा, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉमन गोल्स है उनको कंप्लीट किया जा सके. आई रिपीट, कोऑर्डिनेशन एक ऐसा ऑर्डरली अरेंजमेंट है जहां पर इंडिविजुअल एफर्ट्स को ग्रुप एफर्ट्स में हार्मनी के साथ मेंटेन किया जाएगा. और मेंटेन करने का मेन रीजन ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स को अचीव किया जा सके. So in simple words we can say like that कि इंडिविजुअल एफर्ट्स को ग्रुप एफर्ट्स में कन्वर्ट करना, उनको मेंटेन करना और कॉमन गोल्स को अकम्प्लिश करना, उस पूरे प्रोसेस को या एक्टिविटी को कोऑर्डिनेशन कहा जा सकता है. इज इट ओके? आगे देखते हैं. देखो, कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस के साथ कनेक्टेड है, right? It is not a separate function, but it is a base for these concept functions that are planning, organizing, staffing, directing and controlling. It is the force that integrates all functions of the management, right? Managers at each level are required to perform this function for smooth operations in the organization. देखो, मैनेजर्स को कोऑर्डिनेशन की जरूरत बहुत पड़ेगी और वो भी मैनेजमेंट के हर एक लेवल पर. अगर कोऑर्डिनेशन वो यूज करते हैं तो इनके कारण ऑपरेशंस जो है वो स्मूथली फंक्शनेट होंगे. Thus, coordination synchronizes the efforts of different groups of persons from various units in an organization. In any organization, each employee has his own values and aspirations. Management tries to maintain a good bond between organizational and individual objectives.
It utilizes their knowledge and experience of individuals for the achievement of organizational objectives. At the same time, it also tries to do justice to the employees' objective. देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज है, एज ए इंडिविजुअल उनकी खुद की कुछ स्किल्स रहती है, उसके कुछ वैल्यूज रहते हैं, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती है, और मैनेजमेंट क्या करता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच में गुड बॉन्डिंग को मेंटेन करने की कोशिश करता है। उनका ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि एम्प्लॉइज के नॉलेज और एक्सपीरियंस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके। For example, the objective of employees is generally to get maximum remuneration, whereas the objective of the organization is to increase the production and wealth. Managers coordinate both by motivating the employees to achieve the higher remuneration by producing more, which ultimately helps in realizing the objectives of both the sides. देखो, बेसिकली मैनेजमेंट यहाँ पर क्या करता है, उनका बेस्ट एग्जांपल आपकी बुक में दिया गया है, राइट। ज्यादातर एम्प्लॉइज की विलिंगनेस क्या होती है, उनको ज्यादा रेम्यूनरेशन चाहिए, राइट, ज्यादा सैलरी चाहिए, वेजेस चाहिए, पैसा चाहिए, और उसके सामने एम्प्लॉयर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, उनका ज्यादा प्रोडक्शन हो, उनके वेल्थ में इंक्रीमेंट हो, उनका प्रॉफिट बढ़े, एक्सेट्रा। तो अभी मैनेजर्स क्या करेंगे, मैनेजर्स जो है वो दोनों के लिए एज अ लिंक वर्कआउट करेंगे, कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। मैनेजर्स जो है वो एम्प्लॉइज को मोटिवेट करेंगे कि भाई आप ज्यादा रेम्यूनरेशन अर्न करना चाहते हो ना, आप ज्यादा प्रोडक्शन करो, राइट। और जैसे ही ज्यादा प्रोडक्शन होता है, अल्टीमेटली जो है वो एम्प्लॉयर्स के लिए भी वेल्थ ऑप्टिमाइजेशन होता है, प्रॉफिट इंक्रीमेंटल होता है, right? So it is all about the coordination which is performed by managers, right, between among employees and employers. Clear? Definition देख लेते हैं, coordination की definition क्या है। Coordination is balancing and keeping together the team by ensuring suitable allocation of tasks to the various members and seeing that the tasks are performed with harmony among the members themselves. Coordination harmonizes, synchronizes and unifies individual efforts for better action and for the achievement of the business objectives. देखो, डेफिनेशन में वो चीज क्लियरली यहाँ पर लिखी है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो हार्मोनाइज करता है, सिंक्रोनाइज करता है, उसको यूनिफाइज करता है, किसको, इंडिविजुअल एफर्ट्स को। और किसके लिए वो इंडिविजुअल एफर्ट्स को हार्मोनाइज करता है, सिंक्रोनाइज करता है, या तो यूनिफाइज करता है, राइट, फॉर द बेटर एक्शन एंड फॉर द बेटर अचीवमेंट ऑफ द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, व्हाटएवर द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर देयर, राइट, उनको अचीव करने के लिए, राइट, कोऑर्डिनेशन जो है वो इंडिविजुअल एफर्ट्स को हार्मोनाइज करता है, उसको ग्रुप एफर्ट्स में कन्वर्ट करता है, उनको सिंक्रोनाइज करता है, उनको यूनिफाइज करता है, राइट। चलो, उसके बाद है कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट। अगर आपको पूछा जाए कि भाई कोऑर्डिनेशन जो है वो क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट, उसके लिए डिस्कशन है, यहां पर देखते हैं। Coordination is not really a separate function of management, but in fact it is the essence of management. देखो, coordination जो है वो separate function नहीं है, right? जैसे planning, organizing, staffing, directing, controlling, management के 5 functions है, वैसे coordination कोई separate function नहीं है, but it is the essence of the management. It is like a thread of garland flowers of which are different managerial functions. It should be performed right from the planning stage to the controlling stage. देखो, ये एक ऐसा धागा है जो फूलों की माला को आपस में जोड़ के रखता है, राइट। बेसिकली वो दिखता नहीं है, धागा नहीं दिखता है, हम लोग को फूलों की माला ही दिखती है, धागा नहीं दिखता है। बट बेसिकली अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो माला भी नहीं है, समझ लो इस तरह से, राइट। वो एक ऐसा धागा है जो शुरू से लेके अंत तक सारे मैनेजमेंट फंक्शंस को टाइड अप करके रखता है, उसको बांध के रखता है, उसको जोड़ के रखता है। Absence of coordination weakens the effects
of authority responsibility relationship in the organization. Coordination activates each function of management and makes them effective and purposeful. देखो कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट फंक्शंस को, सारे मैनेजमेंट फंक्शंस को इफेक्टिवली एक्टिवेट करेगा, उसको पर्पसफुली जो है वो एक्टिवेट करेगा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट in all functions of management. Coordination is the essence of management. It is the link that binds all other functions of management together. Coordination ऐसा एक मैनेजमेंट में जरूरी धागा है जो मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को बांध के रखता है. It is an integral part of all the functions of management and not a separate function. वो चीज हमने आगे भी देखी है कि वो एक अलग से फंक्शन नहीं है, बट वो डिफरेंट फंक्शंस का एक इंटीग्रल पार्ट है. चलिए देखते हैं हाउ इट इम्प्लिसिट ईच एंड एवरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. सबसे पहला है प्लानिंग रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन फॉर. देखो प्लानिंग जरूरी है कोऑर्डिनेशन के लिए, और कोऑर्डिनेशन प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है. क्यों? क्योंकि द पर्पस एंड रिसोर्सेज एट हैंड, द मास्टर प्लान एंड द प्लान्स ऑफ वेरियस डिविजन्स एंड डिपार्टमेंट्स. देखो बेसिकली जो है वो जो कुछ भी रिसोर्सेज ऑन हैंड है उनको अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जा सके. यहाँ पर एग्जांपल भी आगे हम देखने वाले हैं. मास्टर प्लान जो है और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के या डिवीजन के प्लान है उन दोनों के बीच में भी अच्छे से बॉन्डिंग क्रिएट हो जाए, उसके लिए भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है. राइट, एग्जांपल में अभी हम देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं ये. For example, presence of coordination is very important between production department and sales department as production department. Moreover, if what is produced is not sold, then the stock will get filled up in the warehouse. Thus, proper coordination between production plan and sales target is very important. देखो अगली स्लाइड में वापस से रोटेट कर रहा हूँ. यहाँ पर ऐसा कहना चाहते हैं कि जो मास्टर प्लान है या तो डिपार्टमेंटल प्लान है, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है फ्रॉम द प्लानिंग स्टेज ऑनवर्ड्स. एग्जांपल में आपको इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि भाई सेल्स डिपार्टमेंट को कुछ ऑर्डर्स मिले हैं, उतने यूनिट्स अगर मैन्युफैक्चर नहीं हुए बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो सेल्स डिपार्टमेंट अपने टारगेट्स को कैसे अचीव करेंगे. वैसा वैसा अगर हम बात करें कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बहुत सारे यूनिट्स प्रोड्यूस करके रखे हैं लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट उनको सेल आउट नहीं कर पा रहा है, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है ही नहीं. यानी जितना प्रोडक्शन हुआ उतना कोऑर्डिनेशन के साथ सेल्स नहीं हुआ तो क्या होगा, जो कुछ भी प्रोड्यूस्ड गुड्स है वो वेयर हाउस में सड़ जाएगा. राइट, वो वेस्टेज हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्लानिंग ऑनवर्ड्स कि जब टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कुछ मास्टर प्लान प्रिपेयर किया है तो वो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स तक कोऑर्डिनेशन में आए, ताकि डिपार्टमेंटल या डिविजनल मैनेजर को भी एक्चुअल में मास्टर प्लान के बारे में पता हो और वो अकॉर्डिंगली अपना वर्क कर सके. या तो सेम लेवल पे अभी एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि एक डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो वो अल्टीमेट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल है. सो प्लानिंग स्टेज में क्लियर. सेकंड वन, ऑर्गेनाइजिंग रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन फॉर. ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं. प्रॉपरली ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी, कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो कंपनी में सारे रिसोर्सेज को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत है. टू एस्टैब्लिश द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी रिलेशनशिप, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट. देखो क्या किसकी ड्यूटी है, कौन किसको जो है वो रिपोर्टिंग करेगा, क्या किसकी अकाउंटेबिलिटी है, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है. एग्जांपल में देखते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हेन द फाइनेंस मैनेजर इज ऑथराइज्ड टू रेज फंड्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, then the responsibility to manage funds should also be given to him. Besides, he should be made accountable for efficient utilization of such funds. For any misappropriation of funds, the finance manager should be made accountable. देखो यहाँ पर फाइनेंस मैनेजर की बात कर रहे हैं कि देखो अगर फाइनेंस मैनेजर को अपॉइंट किया है तो वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो फंड को मैनेज करे.
उनको अथॉरिटी दी है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। अगर वहां पर कुछ गफला होता है या मिस अप्रोप्रिएशन चीजें होती है तो उसके लिए अकाउंटेबल भी फाइनेंस मैनेजर रहेगा। देखो तो अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी को इफेक्टिवली एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करने के लिए भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है। स्टाफिंग के लिए देखते हैं, स्टाफिंग रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन फॉर मैचिंग द स्किल्स ऑफ वर्कर्स विद द जॉब्स दैट शुड बी असाइन्ड टू देम, कंपेंसेटिंग द वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी। देखो यहाँ पर बहुत सीधी सी बात है कि जिसकी जो एफिशिएंसी है या जिसकी जो स्किल्स है उनको मैच करते हुए ही उनको ऑर्गेनाइजेशन में जॉब प्लेस होनी चाहिए। एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि a candidate who has done MBA in human resource should be given work in the human resource department for recruitment training etc. अभी वो तो सीधी सी बात है ना कि MBA में जिसने स्पेशलाइजेशन HR रखा है उसको फाइनेंस में बिठा के क्या करोगे भाई, राइट? तो उसको HR डिपार्टमेंट में ही आपको रिक्रूट करना है, बट वो चीज को भी एग्जीक्यूट करने के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। अदरवाइज HR क्या हुआ बंदा कहीं पर भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, उनके साथ कम्युनिकेट ही नहीं हुआ कि उसको क्या करना है, कहां पर करना है। फोर्थ वन, डायरेक्शन ऑल्सो रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन फॉर इश्यूइंग कमांड्स, इंस्ट्रक्शन एंड सजेशंस, प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन जूनियर एंड पर्सन एट द मैनेजरियल लेवल। फॉर एग्जांपल, मैनेजर्स सेट्स टारगेट टू बी अचीव्ड बाय पीपल वर्किंग अंडर हिम, सुपरवाइजेस देम एंड एनकरेज देम टू वर्क हार्ड। देखो यहाँ पर दो चीज के बारे में क्लियरली बताया गया है। सबसे पहला है कि जो कमांड्स, इंस्ट्रक्शन एंड सजेशंस इश्यू होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट से बॉटम की ओर, उसको अच्छी तरह से कम्युनिकेट करने के लिए भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है, राइट? अगर जूनियर लेवल पर या मैनेजरियल लेवल के बीच में अच्छा वाला कम्युनिकेशन नहीं है, हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं है, राइट, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन की लेकनेस रेज होगी। सही, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है कि मैनेजर्स ने टारगेट सेट कर दिए बट वो कोऑर्डिनेट नहीं हुए तो क्या होगा? एम्प्लॉइज, उनके वर्कर्स जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं, क्या वो उसको अचीव कर पाएंगे? इट शुड बी कम्युनिकेटेड इन द वे ऑफ कमांड, इंस्ट्रक्शन एंड सजेशंस। अगर वो अच्छी तरह से कम्युनिकेटेड है, राइट, वहां पर कोऑर्डिनेशन जो है वो स्ट्रांगली परफॉर्म हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि अगर कहीं ना कहीं कुछ लैकनेस रेज होती है तो उनको एनकरेज किया जाएगा, अगर लैकनेस नहीं है तो उसको अच्छी तरह से अचीव किया जाएगा। सो डायरेक्शन के लिए भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है। नाउ कंट्रोलिंग रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन फॉर, कंट्रोलिंग में कोऑर्डिनेशन की जरूरी क्या है, राइट? क्यों जरूरी है कोऑर्डिनेशन इन द कंट्रोलिंग पार्ट? प्रॉपर बैलेंस बिटवीन स्टैंडर्ड टू बी अचीव्ड एंड स्टैंडर्ड दैट हैव एक्चुअली बीन अचीव्ड, राइट, उसको जानने के लिए। इट मीन्स कि जो स्टैंडर्ड हमने प्लान किए थे और जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस हमें मिला है, राइट, उन दोनों के बीच में बैलेंस करने के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत रहती है, राइट? अगर वहां पर डेविएशन रेज होगा तो वो डिफिकल्टी में कन्वर्ट होगा, राइट? अगर ज्यादा डेविएशन है तो हमारा परफॉर्मेंस जो है वो स्टैंडर्ड से मैच नहीं हो रहा है, कम डेविएशन है, सो वी कैन से दैट कि हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड जो हमने प्लान किए उसके तकरीबन नजदीक में है, राइट? सो इट इज गुड फॉर अस। मेकिंग करेक्शन ऑफ एनी डेविएशन दैट हैज टेकन प्लेस फॉर प्रॉपर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। देखो कंट्रोलिंग का मेन टास्क यही है कि जो डेविएशन रेज होता है उसको करेक्शन पार्ट में कन्वर्ट किया जाए, उसको करेक्ट किया जाए, तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन जो है वो कंट्रोलिंग में जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्लान टारगेट फॉर प्रोडक्शन इज 50 pairs of shoes but only 30 have been produced, then appropriate corrective action is to be taken to make sure that actual target or objects are achieved। तो वो जो है वो अचीव किए गए हैं वो तभी पता चलेगा जब कोऑर्डिनेशन वहां पर होगा। यहां तक क्लियर है? वाई कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलो उसके बाद का जो कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। टोटल वी हैव 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबसे पहला है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, दूसरा है कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन,
तीसरा है कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। चौथा है कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। देन आफ्टर फिफ्थ वन इज कोऑर्डिनेशन इज द responsibility of managers, and at last sixth one is coordination is deliberate function। चलिए देखते हैं सबसे पहला कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। देखो हमने शुरू में ही देख लिया कि इंडिविजुअल एफर्ट्स को ग्रुप एफर्ट्स में कन्वर्ट करना या तो डिफरेंट डिपार्टमेंट के ग्रुप्स को इंटीग्रेट करना वो कोऑर्डिनेशन का काम है, राइट। So it is the first characteristics. Coordination gives a common direction to group efforts to ensure that work is performed according to the plans. Such needs arises as individuals working in an organization have different background and styles of working, right। तो सबसे पहला है कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। Second one, coordination integrates the functions of all departments and ensure that all activities aim at accomplishment of organizational objectives। देखो उनका काम क्या है, एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, सारे जो है वो एक डायरेक्शन में चले, राइट। और यूनिटी ऑफ एक्शन क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना, उसको अकम्प्लिश करना, राइट। तो वही चीज तो कोऑर्डिनेशन करता है ना, राइट। वो क्या करेगा कि वो सारे ग्रुप के एफर्ट को यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में ले जाएगा, राइट, कि उसके कारण जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव किए जा सके। एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पर, इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट एंड परचेज डिपार्टमेंट आर ऑलरेडी रेसिप्रोकली इंटरडिपेंडेंट। देखो बेसिकली ये डिपेंडेंट तो है लेकिन इंटरडिपेंडेंट है और वो भी रेसिप्रोकली। सेल्स डिपार्टमेंट हैज टू प्रोवाइड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट with information about the demand of the product, and purchase department needs to know how much quantity of raw material is required to meet the demand, right। तो देखो ये एक ऐसा चैनल है कि जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये क्वेश्चन रेज करेगा कि हमें इतना रॉ मटेरियल चाहिए, तब जाके परचेज डिपार्टमेंट है वो रॉ मटेरियल की क्वांटिटी को सप्लाई कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द डिमांड। जब वो सप्लाई होगा तो उसके सामने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास सेल्स के भी डिमांड्स वाले ऑर्डर्स वाले फिगर्स होने चाहिए। इफ इवन एनीवन ऑफ थ्री डज नॉट परफॉर्म इट्स जॉब प्रॉपरली, ऑल ऑफ देम विल बी अफेक्टेड। अगर सेल्स वालों ने अपने हिसाब से सेल्स के ऑर्डर ले लिए, प्रोडक्शन के साथ उसका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और प्रोडक्शन का कोई परचेज डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, अगर वो सेपरेटली अपनी जॉब्स को परफॉर्म कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को हार्मफुल हो सकते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स वालों ने इतने ऑर्डर्स ले लिए बट प्रोडक्शन तो है ही नहीं, कहाँ से वो अपने ऑर्डर्स को कंप्लीट करेंगे। सो इंटरनली वो रेसिप्रोकली इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे को एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उनको एक साथ चलाने के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, राइट। वो एक यूनिटी ऑफ एक्शन में उनको ले जाएगा। क्लियर, इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगा, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। थर्ड वन इज कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये चलता रहेगा भाई, कोऑर्डिनेशन इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। इट स्टार्ट्स विद द फंक्शन प्लानिंग एंड कंटिन्यूस टिल द कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के बाद अगर वापस से करेक्टिव एक्शंस हमें लेने हैं तो अगेन कोऑर्डिनेशन की जरूरत प्लानिंग के फर्स्ट स्टेप से हो जाएगी। It is an ongoing process required for the efficient functioning of the organization। चलो ये एक बहुत कॉमन था। Fourth one is coordination is all pervasive functions। All the activities of an organization are interrelated and interdependent। वो चीज तो हमें पता है। Thus coordination is required at all level and in all department। टॉप लेवल मैनेजमेंट से कुछ चीजें डाउनवर्ड कम्युनिकेट हो रही है तो उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए ताकि कम्युनिकेशन मिस कम्युनिकेशन में कन्वर्ट ना हो, राइट। उनको कुछ कहा अलग जाता है, वो कुछ करते अलग है। तो हायरार्की की बात करें अगर हम, तो हर एक लेवल पर तो कोऑर्डिनेशन जरूरी है ही, बट डिफरेंट डिपार्टमेंट में भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है। अगर मैं हॉरिजॉन्टली बात करूं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, तो वहां पर प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, एचआर, फिनांस एक्सेट्रा, तो डिफरेंट लेवल में भी इंटर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। एग्जांपल भी यहाँ पर दिया गया है,
The coordination among purchase, production and sales department is essential for achieving organizational goals. The activities can be performed smoothly in the production department if purchase department provides the required raw material in time. Similarly, the sales activities can be performed smoothly only when there is sufficient timely production of goods. बहुत सी सिंपल सी बात है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो इट इज परवेसिव फंक्शन, हर लेवल पर और हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है. दैट इज द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स. फिफ्थ वन इज कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. देखो हर एक मैनेजर की वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छे से कोऑर्डिनेट करे. अगर मैनेजर्स जो है वो कोऑर्डिनेशन में फेल हो जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना डिफिकल्ट हो जाता है. एवरी मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन. फॉर एग्जांपल, टॉप लेवल मैनेजर्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ देयर सबऑर्डिनेट टू एंश्योर दैट द ओवरऑल पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर ड्यूली इम्प्लीमेंटेड. Operational level management coordinates the activities of its workers so that work is performed according to the plans. टॉप लेवल से शुरू होती हुई चीजें ऑपरेशनल लेवल तक जाती है और इन सभी के बीच में जो है वो कोऑर्डिनेशन होता है. अगर मैनेजर ये कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं तो काम जो है, वर्क जो है वो अच्छे से परफॉर्मेंस में नहीं आएगा. सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स टू डू कोऑर्डिनेशन between the different levels. Clear? Sixth one is coordination is a deliberate function. Coordination जो है वो deliberate function है. A manager is required to coordinate the efforts of different people towards common goals of the organization. Coordination gives common direction to the efforts of the employees who are willing to work and cooperate. अगर coordination नहीं है तो जो मैनेजरियल फंक्शंस है, 5 फंक्शंस है, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएंगे. सो वी कैन से दैट इट इज अ डेलिबरेट फंक्शन, राइट? So from the above discussion we can be conclude that coordination is not a separate function of management but rather it is the essence of management. It is required at all the levels, all the department and all the managerial functions. So characteristics of coordination, hope so 6 characteristics, easy, right? अभी अच्छे से समझ में आ गई है. चलो अभी आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में. सबसे पहला है ग्रोथ इन साइज. The need of coordination arises when the organization growth in size. Growth here means increase in number of employees, right? Employees with different values, experiences and objectives become part of the organization to satisfy their needs. In order to bring harmony in the organization, management has to integrate personal goals with the organizational goals through coordination. देखो यहाँ पर जो बात हो रही है वो ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ द साइज. अगर छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर कम एम्प्लॉइज रहेंगे तो वहां पर कोऑर्डिनेशन की इतनी इफेक्ट नहीं होगी. आई वांट टू मीन कि अगर वहां पर कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है. देखो एक छोटे से कमरे की शॉप है, से फॉर एग्जांपल प्रोप्राइटरशिप फर्म, से फॉर एग्जाम्पल, राइट? वहां पर 2 बंदे हैं, एक जो है वो प्रोप्राइटर है, एक उसका एम्प्लॉई है, राइट? तो वहां पर कोऑर्डिनेशन की उतनी जरूरत रहेगी नहीं. आप समझ सकते हो, राइट? कोऑर्डिनेशन इज बिकम्स एसेंशियल, राइट, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ इन द साइज इज लार्जर. अगर वहां पर ज्यादा एम्प्लॉइज जो है वो काम कर रहे हैं, राइट, तो उन डिफरेंट एम्प्लॉइज को इंटीग्रेट करने के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ज्यादा एम्प्लॉइज की वैल्यूज भी डिफरेंट होगी, उनके एक्सपीरियंस भी डिफरेंट होंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स भी डिफरेंट होंगे, उनकी एक्सपेक्टेशंस भी डिफरेंट होगी. तो ज्यादा लोगों की डिफरेंट चीजों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें कॉमन गोल्स जो ऑर्गेनाइजेशन के उनको अचीव करना है. और जब तक डिफरेंट लोगों की डिफरेंट चीजों को हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे तब तक हम कॉमन गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे. दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड, राइट? सो फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज दैट कि जहां पर बड़ी सी साइज है ऑर्गेनाइजेशन की वहां पर ये कोऑर्डिनेशन हमें हेल्पफुल होता है, राइट? सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंस.
Second one is functional differentiation. The organization is divided into different department, sections or divisions, जैसे प्रोडक्शन, HR, मार्केटिंग, फिनांस, IT, लीगल, etc. दे ट्राई टू वर्क इन आइसोलेशन एंड इंडिपेंडेंटली। देखो हर एक डिपार्टमेंट की कोशिश ये रहती है कि वो खुद से काम करे, इंडिपेंडेंटली काम करे, राइट। बट कोऑर्डिनेशन क्या करता है, वो इंटीग्रेट करता है। द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर दिस यूनिट रिमेन्स अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो कोऑर्डिनेशन की जरूरत ये रहेगी कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा बना रहे, उनको इसीलिए जोड़ के रखना पड़ता है, राइट। एंड मूव टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, तो उनको उसी डायरेक्शन में ले जाना है जहां पर हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को प्री डिटरमाइन किया था, राइट। तो इसके लिए डिफरेंशिएशन रहता है जहां पर फंक्शनली, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो उनको बांध के रखेगा। कंटिन्यू में देखते हैं, एग्जांपल दिया है यहाँ पर, Mr. Saurav, he is the sales manager, has the objective of selling 100 units in a week. He cannot sell them until and unless Mr. Sumit, that is the production manager, produce 100 units, which is possible only when the Mr. Surjit, he is the purchase manager, buys enough raw material to produce 100 units per week. देखो यहाँ पर जो बात की है वो बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ की है। डिफरेंट डिपार्टमेंट है बट वो इंटरनली इंटरडिपेंडेंट है, रेसिप्रोकली, राइट। तो उनको जोड़ के रखने के लिए कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता रहेगी। जब तक परचेज डिपार्टमेंट में मिस्टर सुजीत को पता नहीं चलेगा कि 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो, उतना रॉ मटेरियल चाहिए, तब तक वो रॉ मटेरियल को परचेज नहीं करेगा। जब तक प्रोडक्शन मैनेजर को पता नहीं चलेगा कि भाई हमारे पास सफिशिएंट रॉ मटेरियल है, तब तक वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। और उनके साथ जब तक उनका प्रोडक्शन नहीं होता है तब तक क्या होगा, तब तक सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो अपना सेल्स नहीं कर पाएगी। इट मीन्स कि कोऑर्डिनेशन के कारण डिफरेंशिएट फंक्शनल डिविजन्स को हम यहाँ पर अटैच कर पाए। Though sales department, production department and purchase department work independently, their effective functioning depends on one another. Hence, there is a need to balance the activities of all departments of an organization. आपको अभी तो ये क्लियर है एग्जाम्पल के साथ। थर्ड वन देख लेते हैं, स्पेशलाइजेशन। In modern organization, diversification and complexities of technologies give rise to specialization. देखो जैसे कंप्यूटर का अगर काम है तो उसके लिए आईटी डिपार्टमेंट अलग रहेगा, स्पेशलाइजेशन, राइट। एचआर के लिए एचआर डिवीजन अलग रहेगा। मींस टेक्नोलॉजी वाइज भी अगर बताया जाए या तो मॉडर्न कंसेप्ट को अडॉप्ट किया जाए तो सारी चीजें जो है वो स्पेशलाइजेशन के हिसाब से चलती है, राइट। The organization hires specialist who that they are competent to handle their jobs. देखो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसी स्पेशलिस्ट को हायर करेंगे जो अपनी जॉब को कॉम्पिटेंटली परफॉर्म कर पाएंगे। They do not consult departmental head. देखो अगर खुद से ही काम करना है जिसके लिए हमें अपॉइंट किया है तो हम डिपार्टमेंटल हेड को क्यों कंसल्ट करें, राइट। स्पेशलाइजेशन स्किल को इसीलिए तो हायर किए कि हमें किसी को कंसल्ट ना करना पड़े, राइट। दिस ऑफन लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट अमंग स्पेशलिस्ट एंड डिपार्टमेंटल हेड। देखो अभी होता क्या है कि स्पेशलाइज्ड बंदा है वो खुद से काम करने की कोशिश करेगा क्योंकि उसको ये फील होगा कि आई एम द स्पेशलिस्ट ऑफ माय टास्क एंड यू हैव अपॉइंटेड मी एज द स्पेशलिस्ट ऑफ द कंसर्न्ड डिवीजन, देन व्हाई आई नीड टू आस्क माय डिपार्टमेंटल हेड। अगर ये चीजें होती है तो वहां पर छोटे से कॉन्फ्लिक्ट से लेके बड़ा सा धमाका हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो कॉम्प्लेक्स होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगी, राइट। देयरफॉर कोऑर्डिनेशन इज नीड टू रिकंसाइल डिफरेंस टू एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो अभी देखो ना तो ऑर्गेनाइजेशनल या डिपार्टमेंटल हेड का ईगो बाइट हो, ना तो वो स्पेशलिस्ट कैंडिडेट का ईगो बाइट हो, उन दोनों को आपस में रिदमेटिक सिंक्रोनाइज करके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव गोल्स के अचीवमेंट की ओर डायरेक्ट करना है तो कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट्स रहती है।
सो इट इज द थर्ड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की जहां पर स्पेशलाइजेशन काम करते हैं हम लोग वहां पर कोऑर्डिनेशन इम्पोर्टेंट है, राइट। So the overall concept about the coordination, its characteristics, its importance, its essence, etc., right, whatever we have discussed in this video session is very much clear to you guys. Still, if you have any doubts, we have Mac meeting in our Nalanda app, and you are feel free, right, to ask me about your doubts. Thank you, friends.